پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سے گجرات کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ گوہاٹی میں آسام کے سیلاب کی صورتحال پر ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ سی بی آئی نے روزگار کے بدلے زمین گھوٹالے میں لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی اور 14 دیگر کے خلاف فرد جرم داخل کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی طرف سے شیو سینا کے چناؤ نشان پر دعوی کیے جانے کے بعد ادھو ٹھاکرے کا جواب طلب کیا ہے۔ ہریانہ کی ریاستی انتخابی کمیشن نے 10 ضلعوں میں پنچایت انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ آر بی آئی خصوصی استعمال کے مقصد سے ای روپے کا جلد ہی آزمائشی طور پر آغاز کرے گا۔ اس نے اس سلسلے میں تعارفی خاکہ جاری کیا ہے اور قومی کھیلوں میں ملکہ مقابلے شروع ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ مہسانہ، بھروچ، آنند، جام نگر، راجکوٹ اور احمد آباد جائیں گے۔ اپنے دورے کے پہلے دن وزیر اعظم شمالی گجرات میں مہسانہ کے مقام پر 2,890 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں میں 511 کروڑ روپے کی مالیت کے سابرمتی جاگودان گوج کنورژن پروجیکٹ اور او این جی سی نانداسن سرفیس کا افتتاح بھی شامل ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ موڈیرا گاؤں جو اپنے سوریہ مندر کے لیے جانا جاتا ہے، اسے جلد ہی دیش کے پہلے سور ارجا سنچالت گاؤں کے روپ میں نئی پہچان ملے گی۔ اپنی یاترا کے دوران پردھان منتری نریندر مودی موڈیرا کو دیش کا پہلا 24 گھنٹے سور ارجا سنچالت گاؤں گھوشت کریں گے۔ یہ مہتواکانکشی پریوجنا 80 کروڑ روپے کی لاگت سے بھارت سرکار اور گجرات سرکار کا سنیکت ادیم ہے، جس کے تحت وشو وکھیات موڈیرا گاؤں کے 1300 سے ادھک گھروں پر سولر روف ٹاپ ستاپت کیے گئے ہیں، جس کے پرینام سوروپ بجلی بلوں میں 60 سے 100% تک کمی آئی ہے۔ پردھان منتری کل موڈیشوری ماتا جی مندر اور وشو پرسدھ موڈیرا سوریہ مندر کی ملاقات لیں گے، جہاں وہ سور ارجا آدھارت 3D پروجیکشن اور ہیریٹیج لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا ادگھاٹن کریں گے۔ اپرنا خون، آکاشوانی سماچار، احمد آباد۔ وزیر اعظم نریندر مودی مدھیہ پردیش کے اجین شہر میں 11 اکتوبر کو شری مہاکالیشور مندر توسیعی منصوبے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے۔ جناب مودی اجین میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ اجین میں مہاکالیشور جیوترلنگ ملک میں موجود 12 جیوترلنگوں میں سے ایک ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مہاکال مندر کے احاطے میں توسیعی پروجیکٹ کا منصوبہ سال 2017 میں بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے کے کام کو 2 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا اور اس کے لیے 800 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے کا کام 351 کروڑ روپے میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مودی پہلے مرحلے کا افتتاح 11 اکتوبر کو کریں گے۔ دوسرے مرحلے کا کام سال 2023-24 میں مکمل کیا جائے گا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے لوگوں سے اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے کہا ہے۔ ہم سب کے لیے پرسنتا کی بات، شام کو 6 بجے لوکارپن کا کارکرم سمپن ہوگا۔ یہ بھارت کے سانسکرتک پنراتھان کا یوگ ہے۔ پہلے کیدار ناتھ، پھر کاشی وشوناتھ، اب مہاکال بابا۔ پردھان منتری جی کے ہاتھوں سے لوکارپن ہوگا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ اس پل کے ساکشی بنے۔ مہاکال مندر کے احاطے میں جو راہداری بنائی جائے گی اس کا نام شری مہاکال لوک رکھا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں مہاکال پلازا، مہاکال راہداری، مہاکال تھیم پارک تعمیر کیے جائیں گے۔ مہاکال راہداری میں پیدل چلنے کے لیے 200 میٹر لمبا راستہ بنایا جائے گا۔ خبرنامے کے لیے بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زور دے کر کہا کہ اگر آسام کو مزید ترقی کرنی ہے اور اہم پرائیویٹ سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے تو سیلاب سے حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام کو ایک طویل مدتی منصوبے کے ساتھ آگے آنا چاہیے جس سے آنے والی دہائیوں تک سیلاب سے حفاظت فراہم کی جا سکے اور یہ مختصر مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے ساتھ کل شام گوہاٹی میں ایک میٹنگ میں کہی۔ جناب شاہ نے زور دیا کہ آسام حکومت کو ریاست میں دلدلی زمین کی بحالی اور تحفظ کے ایک ٹھوس ایکشن پلان کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور اس زمین کے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ سیلاب کے دوران زیادہ سے زیادہ پانی کا ذخیرہ کر سکے۔
जनाब शाह ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ आसाम बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में शिरकत की, जिसमें रियासत के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। आज दोनों रहनुमा गुवाहाटी में नए पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे और गुवाहाटी के खानपाड़ा इलाके में एक पार्टी रैली से भी खिताब करेंगे। इसके बाद शाम को जनाब शाह मुंशियात के खतरे पर काबू पाने के लिए शिमाल मशरिक के वज़राए आला और डीजीपीज के साथ एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के आसाम दौरे से पार्टी वर्करों की हौसला अफजाई होगी। पार्टी ने गुज़श्ता चंद वर्षों में रियासत में हुए तमाम चुनाव जीते हैं। आज वो गुवाहाटी के वशिष्ठ चरियाली में पार्टी के नए रियासती दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। वो रियासत भर में पार्टी के तकरीबन 100 इलाकाई दफ्तरों का इफ्तिताह भी वर्चुअल तरीके से करेंगे। दोनों रहनुमा गुवाहाटी के खानपाड़ा में 45,000 से ज्यादा वर्करों की एक रैली से खिताब करेंगे। वजीर दाखिला मनशियात के खतरे पर शिमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला और डीजीपी से भी मुलाकात करेंगे और शिमाल मशरकी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का भी जायजा लेंगे। कल वजीर दाखिला गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल सेशन से खिताब करेंगे। खबरनामे के लिए गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद, उनकी अहलिया राबड़ी देवी और 14 दीगर के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म लालू प्रसाद की रेलवे वजारत के दौरान रोजगार के बदले जमीन घोटाले के केस में दाखिल की गई है। सीबीआई ने एक खुसूसी अदालत में दाखिल की गई अपने फर्द जुर्म में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, वस्ती रेलवे की साबिक जनरल मैनेजर सौम्या राघवन, रेलवे महकमे के साबिक सीपीओ कमलदीप मैनराई, मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किए गए 7 उम्मीदवारों और 4 अफराद के नाम भी शामिल किए हैं। तफ्तीश के दौरान ये पाया गया था कि मुल्जिमीन ने वस्ती रेलवेज के उस वक्त के जनरल मैनेजर और सीपीओ के साथ साजिश रचते हुए जमीन के बदले लोगों को या तो उनके नाम के साथ या उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम के साथ मुलाजमत पर रखा था। ये जमीन उस वक्त के सर्किल रेट से काफी कम और मार्केट रेट से बहुत ही कम कीमत पर कब्जे में ली गई थी। इंतखाबी कमीशन ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे से कहा है कि वो उनके और वजीर आला एकनाथ शिंदे के दरमियान शिवसेना पार्टी के इंतखाबी निशान तीर कमान से मुतालिक तनाज़े के सिलसिले में आज दोपहर 2 बजे तक अपना जवाब दाखिल करें। शिंदे की क़यादत वाले ग्रुप ने एक मेमोरेंडम दाखिल किया है, जिसमें अंधेरी ईस्ट असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में चुनाव निशान अलॉट करने की दरख्वास्त की गई है। कमीशन ने एक खत में जनाब ठाकरे से कहा है कि वो आज दरकार दस्तावेजात मुंसलिक करके अपनी राय दाखिल करें। कमीशन ने कहा है कि अगर उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो कमीशन इस मामले में जो मौजू समझेगा कार्रवाई करेगा। हरियाणा की रियासती इंतखाबी कमीशन ने पहले मरहले के तहत 10 जिलों में पंचायत राज इदारों के सभी 3 जुमरों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। इन अजला में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात 30 अक्टूबर को कराए जाएंगे और पंचायत के इंतखाबात 2 नवंबर को कराए जाएंगे। पोलिंग के औकात सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। इसके साथ ही इन 10 जिलों में मिसाली ज़ाब्ता अमल लागू कर दिया गया है। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की तारीख 14 से 19 अक्टूबर है। पंचकुला में इंतखाबात का ऐलान करते हुए रियासत के इंतखाबी कमिश्नर धनपत सिंह ने कहा है कि बकिया 12 जिलों के लिए इंतखाबी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका जिलों में 33,500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सप्लाई की गई हैं और हर ओहदे के लिए अलहदा ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ओहदे सरपंच, पंचायत समिति के मेंबर और मेंबर जिला परिषद के हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के लिए 16,217 बैलेट बॉक्सेस भेजे गए हैं। पंच के इंतखाब के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब धनपत सिंह ने कहा है कि आजादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले के तकरीबन 36,000 अफराद तैनात किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशनों पर नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने के लिए वाफिर पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और हसास नीज ज्यादा हसास इलाकों में इजाफी पुलिस भी तैनात की जाएगी। हरियाणा में 411 अरकान पर मुश्तमिल 22 जिला परिषद हैं। बाद में अरकान 22 जिला परिषद सरबराहान का इंतखाब करेंगे। रियासत में 3081 अरकान पर मुश्तमिल 143 पंचायत समितियां हैं और अपने अपने सुदूर का इंतखाब करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए के बारे में बेदारी लाने के मकसद से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी से मुतालिक एक तारुफी खाका जारी किया है। इस खाके में भारत में एक डिजिटल करेंसी जारी करने के मकासद, करेंसी के इंतखाब, फवायद और खतरात बयान किए गए हैं। इस खाके में टेक्नोलॉजी और डिजाइन के इंतखाब, डिजिटल रुपए के मुमकिना इस्तेमाल, इसे जारी करने से मुतालिक तरीक़ेकार और इसके शुरू करने में आरबीआई के रोल जैसे मामलात पर भी बहस की गई है। इस खाके में डिजिटल करेंसी शुरू किए जाने के बैंकिंग निजाम, माली पॉलिसी, माली इस्तेहकाम और राजदारी पर पड़ने वाले असरात भी बयान किए गए हैं। रिलीज के मुताबिक आरबीआई मखसूस इस्तेमाल के लिए आजमाइशी बुनियाद पर डिजिटल रुपए का जल्द ही आगाज करेगा। आज भारतीय फजाइया का दिन है। भारतीय फजाइया का आगाज 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और आज इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस मर्तबा फजाइया के दिन का फ्लाई पास्ट आज दोपहर चंडीगढ़ के सुखना जेल पर किया जाएगा। तारीख में ऐसा पहली बार है कि भारतीय फजाइया अपनी परेड और फ्लाई पास्ट कौमी राजधानी खित्ते से बाहर मुनक्किद कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फजाइया के जंगजुओं और उनके कुनबों को भारतीय फजाइया के दिन की मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में आज जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फजाइया को उसकी शुजाअत, महारत, कारकर्दगी और पेशेवराना सलाहियत के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी फजाइया के अमले के मर्द और खवातीन पर फख्र है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में सयाहों के रिकॉर्ड तादाद में आने पर खुशी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए किए गए एक ट्वीट पर रद्दोअमल का इजहार करते हुए वजीर आजम ने गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर द्रास में आज सुबह बैनुल-अक़वामी हॉर्स पोलो स्टेडियम में दूसरे एलजी कप का इफ्तिताह करेंगे। उम्मीद है कि लद्दाख और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। खवातीन की टी20 आलमी कप में आज बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारत के मयारी वक्त दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। भारत की मकामी खेल मलखम्ब का कल 36वें कौमी खेलों में आगाज हुआ। मलखम्ब में एक उमूदी खंबे पर एक जिम्नास्ट के जरिए योग और रेसलिंग ग्रिप का मुजाहरा किया जाता है। इस साल कौमी खेलों में 5 नए खेलों में से ये एक है। इस साल के शुरू में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इसे पहली बार शामिल किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश ने 12 तमगे जीते थे, जिनमें सोने के 5, चांदी के 5 और 2 कांसे के तमगे शामिल हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी के ताल्लुक से ईडी के मुख्तलिफ रियासतों में 35 मकामात पर छापे की खबर को अहमियत दी है। अखबार मिलाप लिखता है, दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब समेत 35 मकामात पर ईडी के छापे। दिल्ली आबकारी पॉलिसी के ताल्लुक से मुल्क भर में कार्रवाई। तकरीबन सभी अखबारों ने अमन के नोबेल इनाम से मुतल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार इनकलाब खबर देता है, अमन का नोबेल इनाम बेलारूस के इंसानी हकूक के कारकुन के साथ रूस और यूक्रेन की तंजीमों के नाम। अखबार प्रताप और अखबार मशरिक समेत दीगर अखबारों ने मरकज के जरिए चीफ जस्टिस से जानशीन के लिए तजवीज़ तलब किए जाने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, वजीर दाखिला अमित शाह ने गंगटोक में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर ममलकत रामदास अठावले के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है कि कश्मीर में तरक्की और अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह गुवाहाटी में आसाम के सैलाब की सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। सीबीआई ने रोजगार के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और 14 दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है।
इंतखाबी कमीशन ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की तरफ से शिवसेना के चुनाव निशान पर दावा किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे का जवाब तलब किया है। हरियाणा के रियासती इंतखाबी कमीशन ने 10 जिलों में पंचायत इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आरबीआई खुसूसी इस्तेमाल के मकसद से ई-रुपए का जल्द ही आजमाइशी तौर पर आगाज करेगा। उसने इस सिलसिले में तारुफी खाका जारी किया है और कौमी खेलों में मलखम मुकाबले शुरू हो गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।